Hello, students of class 12 English. We have been reading the poem My Mother at 66, composed by Kamala Das, a very famous poetess of our country. Although I have explained the poem clearly, yet I would like to explain the difficult terms in easy language. Also, I would like to explain to tell the answers of the questions based on the poem. So, listen to me very carefully. I read the poem. Listen to me. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouthed, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Let me explain, let me tell you the meanings of the difficult terms once again. जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से उनको और अच्छे से सीख लें. Here is a word doze, D-O-Z-E, doze. डॉज का मतलब होता है झपकी लेना. कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं या खाली बैठे होते हैं तो जागृत अवस्था में बैठे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैठे रहने के बाद बैठे रहते ही हम लोग ऊँघने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉजिंग. माने डॉज मतलब झपकी लेना. एक इसकी दूसरी अंग्रेजी होती है नैप, NAP, नैप. तो डॉज का मतलब है नैप, झपकी लेना. ओपन माउथ्ड का मतलब है खुला हुआ मुंह. कई बार ऐसा होता है कि जैसे वृद्ध लोग होते हैं तो, या कुछ युवक भी जब ऊँघने लगते हैं तो उनका मुंह
खुला हुआ रह जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? ओपन माउथ्ड। आशन, आशन का मतलब है ग्रे लाइक ऐश। ऐश मतलब राख, भभूत। तो आशन का मतलब हो गया ग्रे लाइक ऐश, माने राख जैसा भूरा, राख के कलर का आशन। फिर है कॉप्स, CORPS, कॉप्स। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, जो लाश होती है उसको हम, लाश को कॉप्स कहते हैं, डेड बॉडी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट सून पुट दैट थॉट अवे मीन्स soon stopped thinking that idea. But soon she stopped thinking about that idea. Sprinting, sprinting means racing fast, running fast, sprinting. Merry, MERRY, merry means happy. Spilling, SPILLING, spilling means moving. The merry children spilling out of their homes means happy children moving out of their homes. The merry children spilling out of their homes means the happy children coming out of their homes, running out of their homes. Like that of a corpse, like that of a corpse means like that of a dead body. Cochin, I have already told you, an international airport in Kerala. Cochin, an international airport in Kerala. WAN, van, van means colorless. As a late winter's moon, as a late winter's moon means जैसे जाती हुई शरद ऋतु का चांद। As a late winter's moon माने जैसे जाती हुई शरद ऋतु का चांद होता है। जो पोएटिस की मदर का जो फेस था वो कैसा था, उसको कंपेयर किया गया, उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना की गई है किससे? जाती हुई शरद ऋतु के चांद से। तो इसीलिए पोएटिस ने ये लिखा है कि एज ए लेट विंटर्स मून। जाती हुई शरद ऋतु का चांद, जाती हुई शरद ऋतु के चांद के तरीके से उसकी मदर का जो फेस था वो था। और जाती हुई शरद ऋतु का चांद कैसा होता है? जिसमें फीका होता है, उसी उतनी ब्राइटनेस नहीं होती है, धूमिल होता है। फिर है एक, ACHE, एक मतलब पेन, दर्द, तकलीफ, कष्ट। तो इस तरीके से ये डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस थे, उनको मैंने एक बार पुनः आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके लिए इसी पोएम पर बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं आपके लिए, मैं PDF इनका भेजूंगा। आप इनके क्वेश्चंस, इस पोएम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, इनको अपनी रजिस्टर में ठीक से नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपके सामने डिस्कस किए दे रहा हूँ।
हालांकि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी पीडीएफ भेजने से पहले मैं इनको जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं इस पे उनको एक्सप्लेन करूँगा। वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू? क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू? पोएटेस कहाँ जा रही थी? तो आप जानते हैं पोएटेस गाड़ी चलाती हुई, गाड़ी ड्राइव करती हुई अपने 4 व्हीलर से कहाँ जा रही थी? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वही है, द पोएटेस कमला दास was driving to the Cochin International Airport from her parents' home. The poetess Kamala Das was driving to the Cochin International Airport from her parents' home. Question 2. What did the poetess notice while her mother sat beside her? You know that her mother was sitting beside her. At that time, what did she notice? Your question is, what did the poetess notice while her mother sat beside her? जब माँ उसके समीप बैठी हुई थी बगल में, तो पोएटेस ने कौन सी बात पर ध्यान दिया? क्या देखा उसने? The poetess noticed, answer, the poetess noticed that her mother was dozing with her mouth open. The poetess noticed that her mother was dozing with her mouth open. ये देखा कि उसकी मदर जो हैं वो खुले हुए मुंह के साथ ऊँघ रही। Question number 3. Why was her mother's face like that of a corpse? Why was her mother's face like that of a corpse? उस पोएटेस की माँ का जो फेस था वह जैसे कॉप्स माने डेड बॉडी का चेहरा होता है वैसा क्यों था? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर ध्यान होगा तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसका चेहरा पेल, फेडेड और लाइफलेस लग रहा था इसीलिए, और डेड बॉडी का फेस पेल, फेडेड, लाइफलेस होता है। तो आंसर, her mother's face was like that of a corpse because it looked pale, faded and lifeless. Her mother's face was like that of a corpse because it looked pale, faded and lifeless. Question number 4. Who looked out at young trees? What do young sprinting trees signify? Who looked out at young trees? What do young sprinting trees signify? Young trees की ओर किसने देखा? Who looked out at young trees? झांक करके किसने देखा? What do young sprinting trees signify? यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज माने पीछे भागते हुए पेड़, स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब ट्रीज जो पीछे भागते हुए प्रतीत हो रहे थे, ये किस बात की ओर संकेत करता है, किस चीज को सिग्निफाई करता है? आंसर, द पोएटेस और द डॉटर लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज दैट सीम्ड टू बी रनिंग फास्ट. The young sprinting trees signify energetic action of the youth. The poetess or the daughter looked out at young trees. कवियत्री, या आप ये भी कह सकते हैं कि पुत्री ने, भाई माँ के साथ बैठी थी तो कवियत्री पुत्री तो हुई, तो हम ये भी कह सकते हैं कि the daughter, the poetess or the daughter looked out at young trees that seemed to be running fast. The young sprinting trees, जो पीछे को भागते हुए यंग ट्रीज
थे, या तो वे किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई एनर्जेटिक एक्शन ऑफ द यूथ। युवावस्था की क्रियाशीलता की ओर संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच थॉट डिड द पोएटेस पुट अवे? कौन से विचार को सोचना बंद कर दिया पोएटेस ने? पुट अवे मतलब रोक दिया। विच थॉट डिड द पोएटेस स्टॉप थिंकिंग? विच थॉट डिड द पोएटेस स्टॉप थिंकिंग? किस विचार को सोचना आगे उस पर विचार करना बंद कर दिया? विच थॉट डिड द पोएटेस पुट अवे? आंसर, the poetess put the thought of her aging and decaying mother away from her mind। कवित्री क्या सोच रही थी? पोएटेस क्या सोच रही थी? पोएटेस यही सोच रही थी, मैंने अपनी माँ की एज के बारे में सोच रही थी कि उसकी मदर की एज दिनों दिन बढ़ती जा रही है और माँ उसकी जो है वो बिल्कुल किनारे अंतिम वर्षों की ओर, अपनी लाइफ के अंतिम दिनों की ओर बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो ये विचार वो सोच रही थी और फिर उसने इसी विचार को सोचना बाद में फिर बंद कर दिया था। तो द पोएटेस पुट द थॉट ऑफ हर एजिंग एंड डिकेइंग मदर, जो वृद्ध होती जा रही थी और जो जिनकी शारीरिक क्षमता डिके हो रही थी, क्षीण हो रही थी, होती चली जा रही थी, उसको जो है उसने सोचना बंद कर दिया। द पोएटेस पुट द थॉट ऑफ हर एजिंग एंड डिकेइंग मदर अवे फ्रॉम हर माइंड। अवे फ्रॉम हर माइंड मैंने मस्तिष्क से निकाल दिया, सोचना बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस इस पोएम पर बेस्ड हैं, तो आपके लिए मैंने बनाए हैं। इनका PDF में भेज रहा हूँ, इनको ठीक से आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।